Start. Hello, friends. A very warm welcome. And in this session, we are taking up 10 questions each in a lot. And we will try to see that what maximum ideas, thought, and inspiration we can derive जब हम कोशिश करते हैं that how swiftly and how confidently, with utmost honesty, we can write and we can do justice with the answers. So, what are the seven priority areas, Saptarishi, listed in the budget 23-24? One must be aware of the seven priority areas, then only they can write. क्योंकि पूछ रहा है what are the seven priority areas, so you have the less discretion to write on your own. How they are expected to promote the inclusive development in India, that second part is okay, that you can write. So inclusive development is 360-degree development by including all stakeholders, very true, that is fine. Saptarishi, green growth, hard infrastructure, one can say physical infrastructure, self-reliance, last mile connectivity, skill development, digital adoption, social security. So they are seven in number, and then you are enumerating or you are explaining them. Hard infrastructure, again, I'm saying it should be physical infrastructure. A nervous system, crucial for reducing logistic cost. बिल्कुल ठीक बात है. PM गति शक्ति, freight corridor, Bharatmala. It will ensure that regions are connected and seamless so that fruits of development reaches all regions. That's, I think I agree. This is a simple point. Social security like income uh, support, subsidies, 3F, helps in equity among classes across different sectors, MSMEs and self-help. That is also fine. In general words, we can say so. Digital adoption like UPI, RuPay, ONORC, ENAM for citizen-centric governance so that citizen is empowered financially. Skill development under NSDC for reskilling and upskilling workforce to meet the demand of market under the fourth industrial revolution disruption. Last mile connectivity by implementing aspirational districts and aspirational block programs. In that, vulnerables gets adequate support for the economic well-being. Self-reliance by PLI, DLI, and tweaking FDI policy so that India unleashes its potential as global power in manufacturing. For example, electronics, defense, and drugs. That is also I agree. Green growth so that India is able to meet just transition by 2070, and this makes India to use natural capital for economic development. 3R life mission. Saptarishi aligns with the India's target of becoming Viksit Bharat by 2047. So one way is to again the seven elements were taken up and they were explained then and there only that how they are going to help in development. Otherwise, another way could have been that you could take all the seven ways and then one paragraph can be there. So the both ways are okay. Let's move forward. How can blockchain technology play a vital role in digitization of land records in India? So previously questions have been directly on blockchain and they have been directly on asking cryptocurrency and so that. But now we have moved forward how it can help in digitization of land records in India. So PM Swamitwa scheme talks about digitization of land records using drone mapping or geotagging. Digitization of land record is beneficial. How? Because it is going to lesser case pendency. It is objectivity and transparency, dispute resolution, citizen accessibility, and reducing land-based violence and encroachment of government land and land effective land management policy. Now you are writing effective and then and also in the box and then management again there is a box and then you are putting policy so one can take little bit more space rather than stuffing it like this in the corner. That is not going to help really. Blockchain technology based on decentralized public ledger can be useful in making land records available. Can you move forward please? Decentralization will help or will lead to lessen red tapeism, mafia. बिल्कुल सही बात है, mafia culture कम होगा. Ease in data availability with help in public, making government accountable to and to effective use of land. For example, e-Tehsildar in Madhya Pradesh. Data-driven land use will ensure smoother alignment with the government land acquisition policy, auction of green land for Gati Shakti. Accessibility of non personal data to citizen will help in meeting several targets, cropping pattern transformation, reclaiming barren land for land degradation and utility and so on. However, the question arises over the following: data privacy, digital divide, regulation, and the point arises that the pilot based system needs to be implemented at the block level and also starting with the aspirational district program. Then based on the effectivity of blockchain, national policy on land record can be initiated. I think very wonderfully put up and very ideally you have tried to convey, so it's fine. Let's move forward.
How far can PPP help in improving the storage, transportation, and marketing of agriculture produce in India? So Niti Aayog report uh, 3Y states that post-harvest loss leads to 50, around 9 to 15% impact on agricultural value and remuneration or to the farmer. So here, marketing of agricultural produce become very crucial. Marketing farm to table, a better price discovery for farmer, better quality for consumer, allied sector boom, reducing volatility, yeah, I should say volatility in prices in market, less government revenue expenditure, backward haul. So all basic points are available. PPP model can help in improving storage, transportation, and marketing by roping in cooperative, that is produce PACs जो आपकी हैं for creating 70 MMT storage at grassroots level. It will generate income for farmer and reduce farm gate wastage. Farm gate wastage is a good point. Use of e-warehousing receipt for creating sustainable model, PPP, contract farming, for example, Monsanto. Here you can also mention about the recent scheme which has just come up that as long as your produce is there with the warehouse, तो आप जब तक वेयर हाउस पे आपकी प्रोड्यूस है, जब तक आपको अगली प्रोड्यूस के लिए भी आपको पैसा मिलेगा, और आपकी प्रोड्यूस जो है आप मजबूरी में उसको जल्दी बेचने की जल्दी नहीं रहेगी, जब उसको अच्छा दाम मिलेगा तब आप बेच सकते हैं। वो आपको एलिमेंट भी यहाँ लेके आना चाहिए वन लाइन में। क्रिएटिंग लोकल एंड इंटरस्टेट लॉजिस्टिक्स लाइक किसान रेल फ्राइट कॉरिडोर, गुड एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल एक साथ देने की जरूरत नहीं है, आप दो एग्जाम्पल दीजिए कॉन्फिडेंटली और उसके बाद जो है सेम एग्जाम्पल को अवॉइड कर दीजिए। लेकिन क्वेश्चन अराइजेस, आप इसकी जगह ऐसे बॉक्स बनाने की जगह लिख सकते थे, इज पीपीपी ए मॉडल सॉल्यूशन, क्वेश्चन मार्क। मेकिंग प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर इन एग्रीकल्चर बिजनेस मस्ट बी डन इन अ सस्टेनेबल वे, लेस गवर्नमेंट एक्सपेंस यूजिंग प्राइवेट कैपेक्स, HAM का एग्जाम्पल आपने दे दिया। शेयरिंग रिस्क बेस्ड ऑन इक्विटी, देयर बाई the increasing लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम पीपीपी मॉडल और जो आपने शुरू से बात की उसके अंदर आप कमोडिटी का भी एक लाइन लेके आ सकते हैं कि वो भी अगर कमोडिटी जो डेरिवेटिव हैं, अगर उनको अच्छी प्राइस डिस्कवरी अच्छे से होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, तो प्राइवेट सेक्टर को आने में कोई दिक्कत नहीं है। स्पेकुलेशन जितना कम होगा, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, एंड इफ वन इज गेटिंग बेनिफिट सो दे विल डेफिनेटली कम। So PPP model is not enough to transform logistics in agri-produce marketing, as it needs large-scale farmer representation in decision making, as it is social infrastructure and not hard infrastructure dominated role or bridge. बात सही है, बढ़िया बात है ये। Rather than capex, nudging and adoption of reform is a challenge. Nano urea. Agri sector showcasing vulnerability in climate induced impact of, for example, erratic landfall, leading less incentive for private sector. And 47% of population dependent on agriculture produce. Government is responsible for welfare by using protectionist policy, for example, not being in RCEP. And then finally, one can say the cooperative model, which is much more suitable for large scale agriculture industries dominated by small farmers, because 67% farmers are less than 1 hectare, for example, SFAC based Amul and PACS. तो क्वेश्चन पीपीपी में बोलता है, बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा दिया, लेकिन हम जो एंड करते हैं वो पीपीपी पे ही लाके करना है, पीपीपी से ही जोड़ के करिए। अगर कोई सोल्यूशन पहले बताना तो बीच में बता दीजिए और उसके बाद आप पीपीपी पे ही लेके आइए, क्योंकि किसी और तरीके से एंड करना का पर्पस आंसर में हम नहीं कर सकते, बिकॉज एग्जामिनर विल बी रीडिंग इट वेरी फास्ट, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द कनेक्टिविटी विद द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का ही आंसर आना चाहिए। और ठीक है, there is lot of quality information, but as the confidence raises, one can one can try to be not bringing all the things directly, थोड़ा सा स्मार्टली कोई बड़ा वर्ड लाकर, लेकिन वो वर्ड बड़ा पॉपुलर होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स कोशिश करनी है बस थोड़ा सा आंसर को बनाने की। अभी आउट ऑफ द बॉक्स है, थोड़ा सा 10% अगर और हो जाएगा तो इट विल हेल्प। The scheme for modernization and reform through tech in PDS has transformative potential beyond food security for India. So the scheme for modernization and reform through technology in PDS, तो बहुत important है, it's a very crucial, very important area. It's an ongoing process first of all. So NFSA 2013 public nutrition system gives ration to 80 crore individuals and for adhering to food and nutritional security meeting SDG 2 and 3. ठीक बात. But NFSA is not just related to food security, it has a wider connotation beyond basic objectives. A wider reach क्या है? Uphold dignity of the poor, tackling nutritional deficiency, poverty alleviation, equity in society, buffer stock in the times of crisis.
एंड ऑगमेंटिंग रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेरी ट्रू। उसकी जगह एक और सिंपल वर्ड ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, वो भी हल्का सा इकोनॉमिक जस्टिस, क्योंकि पेपर 3 है। ब्रिंग एज मेनी इकोनॉमिक टर्म्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज पॉसिबल। सो टेक्नोलॉजी वो ऑलरेडी बोल रहा है शुरू में, तो हमारा जो पैराग्राफ पहला होना चाहिए थोड़ा छोटा होना चाहिए, एंड डायरेक्टली पैराग्राफ में भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की बात आनी शुरू हो जानी चाहिए। तो क्योंकि आंसर फिर डिस्कशन मोड में चला जाता है, आंसर बिकम्स लेथार्जिक, उससे हमें बचना है। वी हैव टू बी ऑलवेज टॉकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। नॉन वर्बल, वर्बल, ऑल तरह के क्यूज आंसर में आने चाहिए। इट इज है टेक्नोलॉजी कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म। ONOR offers seamless, affordable, and accessible PDS all over country for migrants, urban poor. This way, it makes migrant more socially secure. So, yes, it's okay, no problem. EPDS helps in transparency and objectivity at fair price shop. It reduces scope of pilferage and corruption, thereby increasing trust of the citizen and government. So, the tone of the statements, it is okay, but the tone can be, little bit more like the way when we speak more assertively. It should not be like a government ad, वो वरना प्रिस्क्रिप्टिव लगती हैं। वो बोल रहा है कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ NAFPO, दैट इज Now, pulses. yes, Pulses and FUI, rice and wheat via Bharat brand wheat and rice and pulse. This ensures that quality food is given to the public at affordable rate meeting nutritional standards. So इसको rephrase भी हम अगर करके लिखते, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि लाइक क्या, लाइक आप पहले मिनिस्ट्री का नाम लिख दीजिए सीधा, या फिर आप जो मतलब क्वेश्चन में जाके एक सेकंड के लिए क्वेश्चन बैक द माइंड चलना चाहिए, और उसके बाद आप बता दीजिए कि कैसे वन मोर डायमेंशन, वन मोर एलिमेंट, ऐसे वन मोर एलिमेंट। तो इट कनेक्ट्स एवरीथिंग, देन कनेक्ट्स विद ईच अदर। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत अच्छा है, इट्स अ वंडरफुल एग्जांपल। नजिंग बिहेवियर यूजिंग फूड फोर्टिफिकेशन और यूज ऑफ मिलेट्स हेल्प टू गवर्नमेंट मीट टारगेट्स ऑफ GHI एंड लाइफ मिशन। बात सही है। देयर बाय द पोटेंशियल बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी इज well utilized with the use of technology. The welfare state has been able to reach the last mile connectivity, JAM and PDS. तो point is that बीच में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हमें ये मतलब कि बड़ा आंसर है, लेकिन फिर भी जितने पॉइंट्स हैं, या तो वो पॉइंट्स हमें कनेक्टिविटी से दिख जाएं। मतलब पॉइंट इज दैट वेन एवर वी आर रीचिंग इवन एट द एंड, देन वी मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज कि मैंने आंसर में लिखा क्या। हल्का सा कुछ आना चाहिए ऐसा, तो आ रहा है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इट कैन बी लिटिल बिट मोर स्मार्टर। Knowledge wise, it is perfect. Answer is having all the elements. We will keep on moving. Explain the causes behind occurrence of marine heat waves. Discuss the ways in which they can affect marine ecosystem and cause economic losses. So marine heat waves are when they are होना चाहिए सर, there is, they need, when there होना दे नहीं चाहिए। होना चाहिए। देर इज लॉन्गर एंड हायर सी सरफेस, तो लॉन्गर एंड हायर सी सरफेस में देखिए, पॉइंट इज दैट कि जब आपने लॉन्गर एंड हायर सरफेस लिख दिया, तो आप सी बीच में आपको ऊपर लिखना पड़ा, तो यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर, अगर ये लाइन एक में आती, लॉन्गर एंड हायर सी सरफेस टेम्परेचर अगर अलग से लिखा जाता, तो बात ही अलग थी। अब वो लॉन्गर, हायर, सी सरफेस और फिर टेम्परेचर इधर, तो उससे जो मोमेंटम था वो गायब हो गया। तो नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स कोशिश करो कि राइट जगह आए, उनको राइट प्लेसिंग मिले, उनको राइट वजूद मिले। इम्पैक्टिंग लोकल बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन, अब बे ऑफ बंगाल। भाई इंडियन ओशन एग्जांपल थोड़ा इधर ले आता, एग्जांपल से पहले इधर जो खाली जगह छोड़ा है उसको क्या करेंगे, बे ऑफ फिर बंगाल ब्रैकेट में, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यानी प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको महंगे कपड़े भी दे दूं तो आपको पहनने आने चाहिए। अगर आपको लास्ट में 15 करोड़ की घड़ी पहन के नाक अगर आपको ऐसा करके मतलब उससे ही पहुंचना है कोर्ट से, तो फायदा क्या हुआ। बात समझिए। सो ऑकरेंस ऑफ मैरिन हीट वेव्स बाय ग्रीन ग्रीन गैसेस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, दैट इज वंडरफुल। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको बोल्ड में लिख दो, बोल्ड में सिंगल सिंगल वर्ड करके लिख दो, ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो जाए। बाकी आप स्मॉल एंड स्मॉल में लिख दीजिए। लेस सर्कुलेशन ऑफ सी वाटर ड्यू टू weathering of trade and winds. Due to weathering of trade winds, weathering, Weakness of trade winds. वीकनेस है, वीकनेस कौन पढ़ सकता है इसको, बे ऑफ बंगाल। इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, फॉर एग्जांपल मेडिटेरेनियन। तो भाई एग्जामिनर नहीं एफर्ट लगाएगा, इतना बढ़िया लिखा हुआ है सब कुछ, उसका प्लेसिंग ठीक कर दीजिए ना।
क्या फायदा? पूरा मेहनत कर रहे हो। प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिख रहे हैं, कागज तो सरकार देगा ही ना, पेन लेके जाना है बस आपको। दे इम्पैक्ट द मैरीन इकोसिस्टम लोकल इकोनॉमी, और कम भी लिखा जाएगा फिर आप, ज्यादा लिखने का कोशिश नहीं है, ठीक अच्छा। जैसे अब थर्मोक्लाइन, अब थर्मोक्लाइन तो स्मॉल में है ही, ऊपर से आपने उसको बक्सा भी बना दिया, काहे? छोड़ दीजिए बक्सा, या थर्मोक्लाइन सिर्फ बोल्ड में लिख दिया, थोड़ा यू नो रिलैक्स। व्हेन यू रिलैक्स यू विल राइट लेस। जब कोई किसी को बोलता है कि हाउ डू यू वांट टू प्रपोज, सामने वाला कुछ भी कर सकता है, एफिल टावर पे चढ़ जाएगा या पता नहीं क्या क्या करेगा, लेकिन कोई आदमी ये भी बोलेगा आई जस्ट वांट टू से आई लव यू। उस पे ही लोग तालियां बजा बजा के सीटी ताली तो है ना। तो मतलब इट इज स्मार्ट, और कुछ नहीं। तो thermocline rises to surfaces causing death of phytoplankton and corresponding zooplankton ready to this leads to migration of fishes to cooler region। तो अब मैं होता तो मैं थर्मोक्लाइन, फाइटोप्लैंकटन, एरो, जूप्लैंकटन, एरो हो गया, बस बना दिया तीन, ऐसे तीन ऐसे एरो एरो बना के, और एक लाइन में नीचे वो लिखता बजाय पूरा पैरा लिखने। दिस कॉजेज फिशरी इंडस्ट्री, कितना मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले एक था, ह्यूमन सेक्रीफाइस से पहले उड़ीसा के अंदर एक वो उड़ीसा में भी और ट्राइबल एरियाज में एक था ना, वो एक वो होता था जिसमें आदमी अपने आप को हंटर मारता है ऐसा करके, एक एक फोक है, एक फोक। तो उसमें तो भी है। वही वाला है। सब तो एक पर में भी है, शियाइट। हाँ पर, हाँ शेड पर में भी होता है, करेक्ट। तो क्या जरूरत है उसको करने का, आराम से काम हो सकता है। तो वो भी पर्व है, लोग खुशी से करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा जरूरत ही नहीं है। हीट एंड ओशन एडिफिकेशन कॉजेज कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू एक्सपोज ऑफ polyps from corals. This collapses the biodiversity in the region, the Great Barrier Reef bleaching। अब इसको भी मैं रिफ्रेज कर देता, मैं सीधा बोलता कोरल ब्लीचिंग टेकिंग प्लेस, इसको मतलब ड्यू टू हीट एंड हीट, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है कोरल ब्लीचिंग। से कोरल ब्लीचिंग का कारण है हीट एंड ओशियन एसिडिफिकेशन। और फिर वो तो मैं बार बार बता ही रहा हूँ कि भाई कोलैप्स हो रहा है, सब में हो रहा है, वो सब मैं और जैसे एक बोलिए। क्वेश्चन था ना कि डिस्कस द वे दे कैन इफेक्ट मरीन इकोसिस्टम, दे कैन, दे मतलब हाँ कि वो कॉजेज है। तो मैंने सोचा कि कॉजेज पहले एक्सप्लेन करके फिर कनेक्ट कर दो इफेक्ट पे। हाँ इसलिए बिल्कुल मैंने बिल्कुल, ये कर लेकिन रखा फिर भी शब्द कम होने चाहिए, और कम शब्द। बिल्कुल ठीक बोला आपने, शब्द लाइट, शब्द कम, तो इनोवेटिव हो जाएगा उससे। बाकी सारा सही है, फर्स्ट क्लास है, पॉइंट तो सारे ही हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न एंटार्क्टिक शीट, पहले दो में मत बताइए, थर्ड में फिर से लिख दीजिए, दो को छोटा लिख दीजिए, थर्ड में फिर से बात बोल दीजिए। तो उससे क्या है, वो ट्रैक पे रहता है, सब जगह नहीं लिखा जा सकता, सब जगह तो हैवी हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस शीट, वेस्टर्न एंटार्क्टिक sheet causing sea level rise, this leads to vulnerabilities of island countries and coastal communities and diversity। So we have to understand कि वो causes अगर पूछ रहा है और consequences पूछ रहा है, then we are on track। अगर वो consequences नहीं पूछ रहा है तो then there is no need to give detail। warming of SST, सी सर्विस SST टेम्परेचर। आपने अगर ऊपर ऊपर आपने सी सरफेस टेम्परेचर लिख के ब्रैकेट में SST लिखा था, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। हाँ ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप कहीं पे एक बार कर दिया है तो लिखिए लीड्स टू एरेटिक रेनफॉल इन द रीजन, फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट मानसून गेटिंग इंपैक्टेड फ्रॉम एनसो साइकिल, दिस impacts the whole aquifer recharge and agri economy in India। वंडरफुल कॉन्सेप्ट, आई थिंक वंडरफुली डन। एंड वो फास्ट जब आप और करेंगे माइंड को, तो अपने आप वो आएगा, इट कम्स विद मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर क्लैरिटी, इट इज कमिंग अप। दस टू मिटिगेट द मैरिन हीट वेव्स, following measures are being taken mitigate climate change by adhering to NDC, carbon sequestration in sea, geoengineering like biorock। I think everything perfectly done। बीच वाले बस थोड़े से छोटे और शार्प हो सकते हैं, that's all। Can you move forward? Explain the causes and impact of glacial lake outburst flood, GLOFs। Causes and impact, what are the measures taken by the government in this context? Caused by आपने बताया, तो ऊपर लिखते GLOF, फिर लिखते causes, फिर आप कॉजेज को लिख देते। हैवी फ्लडिंग इन सिक्किम नहीं पूछा तो कॉज्ड हैवी फ्लडिंग, तो अच्छा आपने पहले एग्जांपल बता दिया, ठीक है। कॉज्ड हैवी फ्लडिंग इन सिक्किम 2023 लीडिंग टू ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ओके, इट्स आल्सो ए गुड वे। फिर आपने बताया सिर्फ माउंटेन ग्लेशियर फॉर्मेशन, अब ब्रेकिंग ऑफ दिस बैरियर आइस, अब ब्रेकिंग ऑफ दिस बैरियर आइस बोल्ड में हो सकता है, तो उससे और ज्यादा इंपैक्ट आएगा। कॉजेज, कॉजेज भी बोल्ड में हो सकता है। ग्लेशियल बैरियर गेट्स ब्रीच ड्यू टू अर्थक्वेक और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इवन व्हेन वी आर ड्राइंग द डायग्राम, अगर उसी में ग्लेशियल बैरियर के बगल में आप अर्थक्वेक और हाइड्रो
स्टैटिक प्रेशर भी लिख देते उधर ही, और या उधर ही हैवी कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे, तो नीचे वाले पैराग्राफ में और कम लिखना पड़ेगा. देयर विल बी नो नीड टू रिपीट. So these are the smart ways which we have to learn. But otherwise it is well written. रुक जा भाई, रुक जा नीचे लाओ. This leads to overflowing of the stream downhill, engulfing valleys and settlement. चलिए आगे. हाँ ठीक है, बात तो सही है, समझा दिया. Due to melting of barriers from low albedo, high absorption due to carbon soot, that is climate change. कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आप बताते हैं, आपको लगता है कि यार मेरे को पता है कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं इसको लेमैन को कैसे समझाऊंगा, तो फटाफट से कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे लेमैन को समझ में आए. पूरा ज्योग्राफी ज्योग्राफी स्टाइल में नहीं चाहिए, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल जैसा हो जाएगा. इम्पैक्ट इज डिजास्टर्स फॉर ह्यूमन लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. व्हाई नॉट फॉर इकोसिस्टम. सो रैपिड स्ट्रीम ऑफ वाटर डैमेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम. अब आप सिक्किम से ही ओरिएंटेड हो गए. सिक्किम सिक्किम सही है, शुरू में भी आपने बताया, अच्छा बताया, लेकिन आप सिक्किम को बैक ऑफ द माइंड में रख के लिखते हैं ना. हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, it brings down weathered rocks, pebbles with high kinetic force, destroying houses, buildings, even human lives. कितने सारे आर्मी के जवान थे जो शहीद हो गए थे. It was the emergency communication road connecting led to violation of the. It cuts the emergency communication road. It may be. It deals with the future outburst. Ministry of Earth Sciences have recommended continuous flow from the lake to maintain equilibrium. Measuring breach level by geosensors. चलिए चलिए. GLOF under disaster mitigation plan, that is hilly, slates with glacier, so that first responder, आपदा मित्र, अब आपने कोने में घुसा दिया उसको, आपदा मित्र डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैन कोऑर्डिनेट स्मूथली. यूज ऑफ रिसेट मैपिंग ऑफ रीजन्स वल्नरेबल टू ग्लॉफ, एड्रेस टू EIA impact in hilly terrain. Wonderful point, lot of points. Only thing now we have to work upon is that how we are placing and what we are writing. Thus, stakeholder of state, center and local government along with civil society, GLOF could be mitigated in the future. I agreed. चलिए. How does ऑडियो में क्या है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग्स. रेडियोमेट्रिक कौन पढ़ सकता है इसको? हाउ डज रेडियोमेट्रिक डेटिंग वर्क? व्हाट आर द लिमिटेशंस associated with it? What are the potential advantages of causing cal 41? हाँ, कैल्शियम का आइसोटोप है 41, कार्बन cal 14 41 cal 41 रेडियो आइसोटोप डेटिंग. अब मैं क्या करूंगा इसमें? हाउ डज में पहले मैं बताऊंगा वर्किंग, क्योंकि वो बोल रहा है वर्किंग, तो वर्किंग लिख दूंगा सीधा. वर्किंग लिखा, वर्किंग बता दिया, फिर लिमिटेशन बता दिया, फिर पोटेंशियल एडवांटेज बता दिया. 3 पार्ट हो गया, खत्म. चलिए आगे. Uses the concentration of current element and use of half-life to find out the approximately age of object as radioactive component decays with time. For example, carbon, उसके अंदर क्यों घुस रहा है कार्बन 19 dating for organic compound bones. अब मैं ये बीच में जो मैंने लिखा है, मैं इसको बड़ा बड़ा लिखता थोड़ा सा. शुरुआत जैसे में ये NH इज इक्वल टू NO इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ T1 T2. बस हो गया, बहुत है, बहुत मतलब ये तो मतलब इससे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है. लिमिटेशन आप फिर बता दीजिए. लिमिटेशन एसोसिएटेड विद इट की जगह सिर्फ लिमिटेशन भी लिखेंगे वो भी चलेगा. ऊपर अगर समझा रहे हैं आप तो लिमिटेशन ही बहुत है बस, ज्यादा नहीं. हर बात को डाइपर चेंज नहीं करना है. द टाइमलाइंस विच कैन बी डिटरमाइंड इन लेस देन 56,000 ईयर्स फॉर कार्बन 14. बियॉन्ड दैट इट कैन नॉट बी फाइंड आउट. ठीक बात है, चलो आगे चलो. उसके बाद आपने बोला प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज रेडियो एक्टिव कैन इम्पैक्ट हाफ लाइफ. रेडियो एक्टिव रीजन नागासाकी, बहुत सही है. चलिए. इन सम केसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी मेजर्ड, फॉर एग्जांपल कार्बन 14. ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करनी है. एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा बात सब खत्म कर दो. इट इज हेयर. cal 41 can be used to determine radioactive decay. Half life more than 56,000 years, useful to calculate object age with more precise years. यानी कि इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजों के लिए बहुत अच्छा है ये. बहुत भी आप बहुत पुराना पत्थर, आर्कोलॉजिकल और ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट. लेस यूज ऑफ कंसंट्रेशन इज इनफ. फिर उसके बाद आपने बोला एज ऑफ both organic and inorganic compounds can be measured. Thus, cal 41 can offer new tool to measure decay than carbon 14 for archaeology. For example, Paleolithic age to early Homo sapiens tool. बात तो ठीक है सारी की सारी, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन वही जैसा मैंने बोला इस पे थोड़ा फोकस करेंगे हम. हाउ वी आर पुटिंग अप. चलो आगे. यानी एंजॉय करने की जरूरत है, रिलैक्स होकर उसको पुट अप करने की जरूरत है. व्हाई इज देयर ग्रोइंग कंसर्न ओवर ई फार्मेसी इन इंडिया डिस्पाइट द गवर्नमेंट पुश फॉर डिजिटल हेल्थ? What measures are needed to resolve the dichotomy? E-pharmacy, digital health. अब आप बताइए. E-pharmacies companies like, चलिए आगे चलिए. Pharmacy helps in making medicines available to customer in a timely manner anywhere in the country. It is the consequence of digital health
It is consequence. It is not a consequence. It is a imperative. It is a kind of a positive push. A consequence. तो एक consequence gives us another kind of sign. It is not a consequence. E pharmacy benefits आपने बताया पहले यूजफुल इन केस ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद सम डिजीजेस 24/7 टेलीमेडिसिन इंटीग्रेशन। फिर वो आपने बताया easier to deliver IPD model using private bodies capex. However, there is a growing concern over e-pharmacy. Issue of prescription in some drugs, malpractices. Quality of generic drugs not adhered to as stock needs complete auditing and तो आप लेके आते जो इंडिया का जो ड्रग सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन का आपने आगे बताया होगा आई एम श्योर। कोऑपरेशन ऑफ हेल्थ केयर फ्लिपकार्ट फॉर मेडिसिन। collecting data from the individuals health and showcasing advertisements, dark pattern, very true. No brick mortar presence leading to issue of regulation. Discount like e-commerce leads to over consumption of antibiotics, multivitamins, over prescription हो गया। उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि देन इन द नेम ऑफ ड्रग्स जो इन द नेम ऑफ मेडिसिन ड्रग्स हैं या फिर बाकी सारी चीजें वो सब भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। दूसरा एक तरीके से हवाला की तरह काम करता है, मतलब बहुत जगह बहुत सारी चीजें हो सकती है। वी नेवर नो वेदर द पीपल हु आर रियली दो जो जो लोग रियली क्वालिफाइड है दे आर डूइंग इट। सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ इश्यूज। ये ई फार्मेसी का इशू है। सो इट इज देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ डाइकोटोमी ओवर डिजिटल हेल्थ अमंग। तो पहली बात तो हम आंसर में ऐसा भी कर सकते थे कि डिजिटल हेल्थ और ई फार्मेसी दोनों अलग अलग चीज है। डिजिटल हेल्थ एक रिकॉर्ड को बताता है, डिजिटल हेल्थ प्रिस्क्रिप्शन से शुरू होता है, लेकिन ई फार्मेसी वो नहीं है। ई फार्मेसी तो इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। तो डिजिटल हेल्थ का ई फार्मेसी एक पार्ट है, आप ये कह सकते हैं। तो ई फार्मेसी पे फिर फोकस करके करना था। और ई फार्मेसी में भी जैसा मैंने बोला, इट इज नॉट एनी अदर कॉमोडिटी, आप ऐसा लिख सकते हैं। वो ग्रोसरी नहीं है। इट इज नॉट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। सो इट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ, ऐसा करके एक लाइन लिखते तो बात और भी अच्छी हो जाती। चलिए आगे। ई जन औषधि लाइक ONDC ई कॉमर्स फॉर मेकिंग ई फार्मेसी मोर सिटीजन पार्टिसिपेटिव, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, डार्क पैटर्न कलेक्शन, ई वेयर हाउसिंग विद ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर ऑडिटिंग एंड एडमिशन, एडहरिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। बात सही है, बाकी आपके पॉइंट ठीक है। लेकिन ई फार्मेसी जो है, ई फार्मेसी की बात उठी है, यही है कि वो लोग बहुत हैवी डिस्काउंट देते हैं। दूसरा फिर वी नेवर नो मेडिसिन कैसी हैं। बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जो मिसयूज हो सकते हैं। हो सकता है आपने मंगाया ही नहीं है, मतलब किसी और के नाम से फेक प्रिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। तो वो सारी चीज हमें देखना है, बिकॉज देयर आर रॉन्गफुल कंजप्शन ऑल्सो। तो वो एलिमेंट आपको लेके आना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से। ड्रग कंट्रोलर का रोल लेके आइए, फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रोल लेके आइए। ऐसे सिंपल एक दो हम पॉइंट लेके आ सकते हैं। What factors have contributed to the decline of LWE in India? Do you think the decline is significantly likely and LWE problem in the near future? Over the years, this is wonderfully done. आपने बहुत अच्छा किया ये जो मैप बना के आपने 2 मैप बनाए, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, हैंड राइटिंग भी ठीक ही है मतलब, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा है। चलिए आगे। Factors contributing to the decline: increased developmental focus of government at grassroots level, right from subsidy schemes. तो आप कह सकते हैं डेमोक्रेटाइजेशन। फर्स्ट एलिमेंट इज द परसिस्टेंट बिलीफ इन द डेमोक्रेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने सिर्फ मनी नहीं स्पेंड किया, बिलीफ भी है उसका। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। ये लिखना कोई जरूरी नहीं, अंडर हैवी CRPF प्रोटेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन्वॉल्व लोग हैं, लोग आते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। विलेज आउटरीच बाय इनरोलिंग देम इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। यूज जस्टिस है बेसिकली, जस्टिस नॉट जस्ट सीन, जस्टिस बीइंग डन, ऐसा हुआ है। सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, बिल्कुल सही है। कोबरा विलेज डिफेंस रिजर्व टू फ्लैश आउट माउस कैडर। अब फॉर एग्जांपल किलिंग, किलिंग के बाद तो लेंसी चाहिए पढ़ने के लिए, आपने एक जो और छोटा कर दिया। आपका बस चलता तो आप डॉट डॉट करके छोड़ देते कि अपने आप गैस करो भाई। ये मेरी तरफ से क्विज है। लेजिस्लेटिव मेजर्स लाइक स्ट्रिंजेंट यूआपा 96 अमेंडमेंट, थोड़ा सा बड़ा लिखिए, थोड़ा सा बड़ा लिख के बीच में लिखिए फास्ट। चलो पहले तो आप टेढ़ा लिखते थे, अब कम से कम वो सीधा हो गया, ये भी एक हमारे लिए खुशी की बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल्स, फॉर एग्जांपल 5th शेड्यूल ट्राइबल एडवाइजरी बॉडी पैसा 1996। 10 ड्रास्टिक डिक्लाइन इन वायलेंस इज देयर, बिल्कुल सही बात है। शोकेस सेवरल थिंग्स, डी इंसेंटिवाइज फॉर ट्राइबल्स टू जॉइन LWE, कर्बिंग अर्बन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंडिंग, बिल्कुल ठीक बात है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ट्राइबल्स, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, दिस वंडरफुल पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। Enriching grassroots democracy with strengthening Ram Sabha, these points are all wonderful. So in near future, India will be urbanized
as India will urbanize slowly. No, it is not the question of urbanization. State capacity to act against violent uprising increases. No, we already have the capacity. We just believe that everyone must be given a due fair chance, and that is how गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो द स्ट्रैटेजी एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट. इसलिए नहीं कि हम हमारे पास बहुत बंदूक आ जाएगा, हम शहर बन जाएंगे तो आपको मार देंगे. नहीं नहीं, हम विश्वास ही नहीं करते इसमें. हम सबको साथ लेने में विश्वास करके चलते हैं. स्लोली एलडब्ल्यू विल डाई. बिल्कुल सही बात है. पीपल हैव रियलाइज दैट एलडब्ल्यू इज नॉट द फ्यूचर फॉर देम. आप इनसे एम्प्लॉयमेंट पे एक लाइन लिख सकते थे क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी है. इकोनॉमी पे लिख सकते थे. सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक लाइन हो सकता था. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक लाइन हो सकता था. और उसके अलावा कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट का हो सकता था. बच्चे स्कूल जाएंगे तो आप बंदूक क्यों चलाओ? कौन चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल ना जाए, वो बंदूक चलाए? ये कोई नहीं चाहेगा. लिखिए, या आप लिख सकते हैं. मतलब ऐसा करके नहीं, मतलब यू कैन जस्ट पुट इट. नाउ डिस्पाइट commonalities and synergies between money laundering and tax crimes, leveraging anti-money laundering measures for tracking tax crimes presents political, legal as well as aspirational challenge. This is a very, very complex and comprehensive concept and question. तो इसके अंडरस्टैंडिंग होके बिना आप नहीं लिख सकते. मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स क्राइम्स इरोड द फाइनेंशियल एंड मोरल हेल्थ. चलिए आगे. तो नीड टू बी टैकल्ड इफेक्टिवली. रोल ऑफ एसआईओ, पीएमएलए, एफटीएमए, एफसीआरए, बेनामी प्रॉपर्टी, all points are done. However, anti-money laundering measures focus political, legal, and operational challenges. One, presence of crony capitalism, which backs the government for ease in policy. For example, electoral bond scheme nullified by Supreme Court 2024. Stringent FCRA measures and FMI impacts the NGO will impact the funding. It creates the political atmosphere for vendetta, as it is alleged. Amnesty International ऐसा बोलता है. Use of central agencies for settling the political score. ED has, it is alleged. आप alleged लिख सकते हैं ऐसा. आपको पता है क्या यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी फॉर सेटलिंग political? कौन बोला आपको ऐसा? कौन सा डेटा है आपके पास? इट इज alleged. आप बैठे बैठे बाप नहीं बन सकते ना कि सेंट्रल एजेंसी ऐसा कर रहा है. लो कन्वेक्शन रेट है ईडी सीबीआई, ये भी बात सही है. एनआईए क्रिएट्स इंस्टीट्यूशनल चैलेंज. रोल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन based corrupt online gambling. Points are all okay. Transnational crimes operation of crime leads to creation of shell companies. Mauritius. Base erosion profit showing tax evasion. Here legal jurisdiction of CBI is limited. So there is need for common institution at national level. Coordination चाहिए, synergy चाहिए, आप ऐसा कह सकते हैं. Money laundering, ED can lead where other cases can be transferred to it, by which ED can specialize and coordinate with other agencies, CBDT and GST for effective compliance. Now this is a good point. These all points are valid points. That's what we can say. One element we will discuss is you can, so in this question all points are very wonderfully and aptly put up, but then when it comes to money laundering and other aspects, one simple thing what we can put up is that when companies look forward to evading, companies look forward that they must get as many ways as possible so that they can they can save money. They will look for creating shell companies. तो डिसइंसेंटिवाइज तो हो ही रहा है जैसा आपने बताया अभी. दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने, एज वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव सीन विद रिस्पेक्ट टू आवर वन ऑफ योर सीनियर ऑफिसर्स who had even come to interaction with you, आपको उसका मेंशन करना चाहिए कि कैसे वो बन गए हैं. कैसे हमने ओवरसीज इनकम टैक्स यूनिट्स भी खोला है. उनका काम है, वो देख रहे हैं. उनका काम है इसी जो ये एग्जैक्टली यही चीज है जो आपने अभी लिखा, टैक्स सीबीआई, जो आपने कॉमन पूरा बात बताया. इनकम टैक्स, ओवरसीज इनकम टैक्स यूनिट्स भी है. दूसरा, जो government is actually working on these these networks, and government is trying to break these network. Government is trying to make sure that rule of law works. तो इसमें आपने अच्छा लिखा, बढ़िया लिखा, लेकिन और थोड़ा सिंपल लिखने के लिए एक दो कॉमन पॉइंट्स भी हम डाल सकते हैं. कैसे रोल ऑफ रेवेन्यू एंड ऑल्सो इनकम टैक्स, both are very important actually at the base level. हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेवेन्यू ऑफिसर है, उसको पता है क्या हो रहा है. तो वहीं से एक बात शुरू हो जाती है. डेटाबेस तो पूरा का पूरा है ही, हम बहुत सारा चीज कर रहे हैं, तो अच्छा है. कॉमन इंस्टीट्यूशन जो आपने बोला, उसकी जगह आप बोल सकते हैं कि देयर नीड फॉर मोर कोऑर्डिनेशन इज देयर, तो उससे भी बात हो जाएगा. बट आई थिंक वेल एफर्ट्स, वेरी वेल रिटर्न,
All the answers they reflect comprehensive and clarity of thought. It must be appreciated. So going back to the first question again, budget, the annual financial statement, Article 12, hold the vision for future growth of economy and propelling directed action. So आपने सप्तऋषि बनाया, आपने भी ग्रीन ग्रोथ, पोटेंशियल, यूथ, डेमोग्राफिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट माइल रीचेबिलिटी, कनेक्टिविटी, ठीक है. दीज आर सीन टू बी इनेबल्स. ओके फाइन, चलिए बॉटम अप अप्रोच, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, आंगनवाड़ी, डिजिटाइजेशन, पीएससी प्रमोटिंग फेयर मार्केट कंपटीशन. तो उसमें आप बोलिए फेयर मार्केट कंपटीशन है तो कोई रेगुलेटर है या कोई ऐसा, उसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं, साथ में एक वर्ड लिख सकते हैं. लाइक इन हिज आंसर देयर वर लॉट ऑफ हैवी वर्ड्स, लॉट ऑफ गुड फ्रेजेस. तो इनके बीच में भी जब वो फिट होगा, वैसे हो रहा है, तो ही कैन टेक अवे द लाइट, लिटिल बिट लाइट स्मॉल, यानी कन्वर्जन ऑफ द लैंग्वेज, एंड यू कैन टेक अ मोर हैवियर फ्रेज. तो उससे बहुत फायदा हो जाएगा. जैसे इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी एंड इक्विटेबल ग्रोथ, इट विल अट्रैक्ट मोर मार्केट प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट, पीपीपी मॉडल इन हाईवेज, इंक्रीजेस फाइनेंशियल. तो आप सीधा लिखो बुंदेलखंड एक्सप्रेस, बुंदेलखंड हाईवे, ऐसा सीधा नाम लिख के खत्म हो गया. अब कितना देर तक लिखते रहोगे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. वो एक बार बताया और उसका एक सॉलिड सा एग्जांपल. जैसे अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है, या जैसे मतलब चीजें हो रही हैं, जैसे मतलब कि अभी फर्टिलाइजर प्लांट्स को हम रिवाइव करने का बात कर रहे हैं. बहुत पैसा लगता है उसके अंदर, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च होता है. तो एक पॉइंट आप बोलो, रिलैक्स होके बोलो, वही बहुत बड़ा बात है. अचीव सेल्फ रिलायंस विद एनर्जी सिक्योरिटी, फेजिंग आउट डाउन ऑफ कोल एंड पीएलआई स्कीम, ठीक है. डिजिटाइजेशन विल इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ वेलफेयर मेजर, फॉर एग्जांपल यूपीआई, रुपे कार्ड, सीमलेस पेमेंट सर्विसेज, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये देखो, अब आपने इसी के अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड भी आया है, डिजिटाइजेशन भी आया है, सीमलेस कनेक्टिविटी भी आया है, सेम ही बात हो, तो उसको और रिफ्रेश किया जा सकता है थोड़ा सा. यू नो डिजिटाइजेशन, ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन will help in not only integrating but also seamless connectivity. बा फुल स्टॉप. उसके बाद एक बात बोला, खत्म. जैम has enabled public saving of rupees 90,000 crore through plugging leakages. Now leakages should have been come at the top. यू नो ये बहुत बड़ा बात है. ये वहां उसको जोड़ के लिखते कि, या फिर लिखते नॉट ओनली प्रमोटिंग डिजिटाइजेशन बट इज ऑल्सो स्टॉपिंग प्लिफरेजेस या स्टॉपिंग लीकेजेस. फिर वहां बोल दिया, तो मतलब बात वही है, बस मैं समझाने की कोशिश है. तो लिखते समय आपका विचार, आपका पूरे दिन का माइंडसेट, कितने रिलैक्स होके आप कैसे बैठते हो, कैसे आप सोचते हो, कैसे आप लिखते हो, वो सब यहाँ पे निकल के आएगा. ऑफर अ होलसम सिस्टम फॉर अट्रैक्टिंग एफडीआई एंड टर्निंग इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर एंड क्रिटिकल प्लेयर ऑफ सप्लाई चेन. तो वो तो है ही. तो अब होलसम इकोसिस्टम, तो इंडिया कैसे, इंडिया इज इमर्जिंग नॉट ओनली एज अ सर्विस ओरिएंटेड हब बट ऑल्सो प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग एज अ वैल्यू चेन, जैसा अभी हो भी रहा है फ्लेक्सॉन, और वो तीन चार चीजें और भी आया है. मतलब हमने बड़ा बड़ा प्लेयर्स दे आर इन्वेस्टिंग हेयर, सेमीकंडक्टर का भी हो रहा है, देन ईवी का भी हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी हो रहा है. हो गया, बस उतने में काम डन. तो आंसर इज ऑल्सो ऑन ट्रैक. दिस इज ऑल्सो वंडरफुली रिटन लाइक द वे द फर्स्ट वन. So the challenge is to make it as out of the box and simple as possible. Now this is the challenge with the first answers. Blockchain, deep technology is a decentralized ledger of records. देखो इन्होंने जैसे बनाया तो चलेगा, ये दौड़ेगा, देखा भी नहीं कि एग्जाम में इसको कट राइट मारेगा और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी है. डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ लैंड रिफॉर्म. देखो कितना बड़ा बात बोल दिया, अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ लैंड रिफॉर्म. इट कैन प्ले कैसे, सेफ एंड सिक्योर. चलो, इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन एक्शन. आप उसकी जगह और भी सिंपल लिख सकते हैं कि जो करप्शन है, जो फार्मर या आम आदमी को जो मतलब जो करप्शन है, वो ही उड़ जाएगा हवा में बेसिकली, बिकॉज कोई कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा. यही आपका इंटेंशन भी है लिखने का. रिजॉल्व लैंड डिस्प्यूट, पेंडेंसी ऑफ केसेस, आपने भी लिखा था, इन्होंने भी लिखा. पुट एन एंड टू एंड साइंटिफिक क्लेम्स ऑन द लैंड इन फ्यूचर, बिल्कुल सही बात है. चलो आगे. as seen in Karnataka. Mapping of land will enable the future development of land urbanization. That's a wonderful point. Will increase the cyber security as the blockchain technology is to immune such attacks and compared to, तो simple है थोड़ा भाषा. Safety of unforeseen hazards like fire and claims of animal displacing. Wonder, this is the point number 6 is very much appreciated. Like the way in the previous answers, हाइड्रोजन वाला जब हमने लास्ट टाइम किया था, तो वहां पे जब कंपेयर किया था कि कैसे न्यूक्लियर और कैसे हुआ, तो ये वैसा वाला पॉइंट. आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट द पॉइंट नंबर 6. Therefore it creates need for creation of data centers. लेकिन जैसे पहले आंसर में था, उसका थोड़ा सा कमी भी बता दिया था, तो कोई नहीं, एक आध बीच में क्रिटिकल बोल सकते थे, तो वो हो सकता है. Storage, transportation and marketing forms the trinity for augmenting structural reforms in agriculture and boost the agriculture share of GDP in the real sense. ठीक है बॉस, मैं तो ये भी लिख दूंगा एग्रीकल्चर शेयर ऑफ जीडीपी है कितना और कितना
ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, इतना है और इतना 10 साल बाद होना चाहिए, चाहे भले ना हो पाए वो। एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया फोकस, food wastage, influence of intermediaries and hoarding, fall in market prices and losses, inefficient MSP support. It is here the role of PPP becomes significant to aid public sector efforts in the agriculture growth. The recent shift towards PPP is visible in building cold storage facilities and warehousing centers such as in Maharashtra and Gujarat with Tata Group. ठीक है चलेगा। उसमें भी कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स विल अलाउ फार्मर नॉट टू सेल द प्रोड्यूस ड्यूरिंग सरप्लस, ये हमने बात की थी पहले आंसर में भी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बात आ गया, टॉप स्पिन का बात आ गया। जैसे पहले वाले आंसर में इन्होंने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की बात थी या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का बात था, उनके भी वर्ड लेके आ जाओ। इन ट्रांसपोर्टेशन किसान रेल ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू मीट द डिमांड सप्लाई मिसमैच एट रिलेटिवली लोअर फ्राइट चार्जेस। यानी ट्रांसपोर्टेशन भी बोल रहे हैं आप, या कोई भी आप हेड बोलते हैं, तो जैसे पहले वाले आंसर में जो आइडिया था कि एक पॉइंट बताया उसको थोड़ा सा वो किया, फिर दूसरे पे आ गए, तो आई थिंक वही वाला अप्रोच यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने से और अच्छे से हो जाएगा। गिविंग फार्मर डाइवर्स ऑप्शन टू सेल प्रोड्यूस बियॉन्ड लोकल मंडीज, और उसके बाद जो है सरप्लस टोमेटो इन महाराष्ट्र कैन बी सप्लाई टू डिफरेंट इन नॉर्थ इंडिया। इन केस ऑफ मार्केटिंग एफपीओ नेफेड एंड ट्राइफेड ऑफर सच सर्विसेज, बट प्राइवेट प्लेयर्स कैन प्रोवाइड रियल टाइम मार्केट इन्फॉर्मेशन ऑन वेदर प्राइसिंग। इसमें मैंने जैसे बोला था डेरिवेटिव्स भी लेके आ सकते हैं, फोरकास्ट और डेटा एनालिटिक्स भी आ जाएगा। और उसके बाद जो है पीपीपी विल प्रूव टू बी गेम चेंजर, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द प्राइवेट प्लेयर्स एंड इंश्योर नो डोमिनेंस इज क्रिएटेड। तो यानी जो पहले उन्होंने उतना डिटेल में बात किया था कि प्राइवेट प्लेयर कैसे डोमिनेट कर सकते हैं, उसी बात को आपने सिंपल तरीके से कर दिया। तो आई थिंक वी कैन हैव ए मिडल पाथ, ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन, टाइमली डिस्क्लोजर इज मेड, वंडरफुली डन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें था कैसे पीडीएस जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चन था वो। पीडीएस अंडर द एनएफएसए 2013 इज एन एश्योरेंस टू बेनिफिशियरी, चलो आपने भी बता दिया क्या है। स्मार्ट पीडीएस, आई लाइक द लाइन। फ्यूचर ट्रांसफॉर्म द पीडीएस सिस्टम लीडिंग टू इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजिटलाइजेशन विल इनेबल इजी एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है। नॉट वेस्टिंग टाइम नॉट जस्ट इन लॉन्ग क्यूज, बल्कि उसके लिए जो भी हो सकता है, ये जो मार्जिनलाइज है, जो वीकर है, उसको मिलेगा ही नहीं। उसके बाद कम दोगे, वो सारा बहुत सारा चक्कर होता है। आप अनाज डाइवर्ट कर देते हो, जो ट्रक पीडीएस पे आना था वो गांव में चला गया, मतलब मंडी में चला गया, और सड़ा हुआ जो है वो राशन में आ गया, ये सब चलता है। तो इंटीग्रेशन विद द वन नेशन वन राशन कार्ड्स रिड्यूसेस द हैसल्स टू गेट द फूड। दूसरा, आपको सबको दोनों को लिखना चाहिए था कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और जो सिस्टम है उनको अकाउंटेबल बनाता है। ये उनको इट मेक्स देम मोर अकाउंटेबल एंड इट इंश्योर दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी प्रॉपरली, बिकॉज सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच हो जाता है। सिटीजन के ऊपर, सिटीजन के पास एक वो है, मुझे राशन नहीं मिला, टोल फ्री नंबर पे डाल दिया, या फिर दुकान टाइम से नहीं खुला, उसका फोटो डाल दिया, ट्विटर के ऊपर फोटो डाल दिया, फूड सप्लाई ऑफिसर विल हैव टू टेक एक्शन। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिड्यूस चांसेस ऑफ करप्शन लीकेजेस, ठीक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ओके। इट विल हेंस इनेबल इंडिया टू क्लैरिफाई इट स्टैंड एट डब्ल्यूटीओ। इंडिया नो नीड टू क्लैरिफाई, इंडिया विल एबल टू जस्टिफाई इट्स क्लेम। हमारा स्टैंड जस्टिफाई होना चाहिए, हम क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं किसी को, हमने कोई गलती नहीं की है कि वी नीड टू क्लैरिफाई। एंड दे होल वर्ल्ड नोज, the Europeans and also the developed world knows the significance, but they cannot move beyond their own selfish interests. That is why it is happening. So data analytics हो गया, ये ऊपर भी पॉइंट था। और अमाउंट ऑफ डिमांड डिफरेंट रीजन, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। आउटकम बेस्ड एलोकेशन है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हो गया, बिल्कुल सही बात है। इट विल प्रमोट साइंटिफिक पॉलिसी मेकिंग एंड नेसेसरी ट्वीक्स नीडेड। Therefore, when the objectives will be met in a targeted manner, the dependence upon PDS will decline, achieving efficient utilization of resources in SDG 13, 3, 2 and 1। अब जब आप 13, 3, 2 and 1 लिख रहे हो, जैसे इन्होंने भी शुरू में बताया था, लिख दो 13 के आगे क्या है ये। अब इतना भी मत बनाइए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी की तरह कि भैया बस कोड वर्ड में डाल दिया सेक्शन 1, 2.3 आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं होता, आंसर है ये। सो मैरिन हीट वेव्स आर इंस्टेंस ऑफ परसिस्टेंट वार्म एंड हॉट टेम्परेचर, ठीक है। क्लाइमेट चेंज लेड कॉजेज, आपने 3 कारण बताए। ऑयल इंडस्ट्रियल बताया आपने, ऑयल स्पिल बताया, जैसे अभी हौती में हुआ है, हौती रेबल्स ने जैसे एक जहाज को डुबा दिया है रेड सी में, उसमें फर्टिलाइजर्स थे। शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ ओशन करंट्स, एल नीनो, तो बिल्कुल ठीक है। राइजिंग कंज्यूमरिज्म ड्रिवन बाय कैपिटलिज्म एंड मेटलिस्टिक लाइफस्टाइल, बिल्कुल ठीक बात है। इकोलॉजिकल बैलेंस, अच्छा लिखा, नेचुरल लिखा, चलो। लॉस ऑफ मैरिन लाइफ एपिसोड, जैसे इन्होंने बताया था, जू प्लैंकटन टाउन्स और फाइटोप्लैंकटन ने, वो बताना चाहिए। वेस्टिंग ऑफ बीच ऑफ शोर्स, फॉर एग्जांपल मुंबई भितरकनिका। एल्गल ब्लूम्स कॉजिंग राइज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बिल्कुल ठीक बात है। इंपैक्ट ऑन सी अवेलेबिलिटी, कोस्टल हैबिटेट, सो लैंग्वेज इज गुड, फ्लो इज गुड,
एंड फैक्ट्स आर ऑल्सो देयर। सो पहले वाले आंसर के मुकाबले फ्लो ऑफ थॉट्स मैं बोलूंगा ज्यादा है, लेकिन कंटेंट उसके मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन कंटेंट वहां पे भी थोड़ा सा कम हो सकता है। भाषा यहाँ से सीखी जा सकती है। सो मास कोरल ब्लीचिंग, कोरल एक्सपेल्स zooxanthellae लीडिंग टू whitening, इट विल इम्पैक्ट द वाटर टूरिज्म। इन्होंने भी पॉइंट बताया था, ऊपर भी उन्होंने यही सेम एग्जांपल दिया था। Further aid in rise of sea levels with halting of water causing it to expand. It will future lead to release of carbon from key kelp forests. Pattern of monsoon with intensity, timely and time, and ultimately casting shadow on agriculture, food security, income of farmers, and also life. कुछ नहीं बचेगा लास्ट में। Therefore, blue economy, green maritime is the need of the hour. Even आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं जैसे कि ओशियन के उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी उसका एक साइकिल है ये। बिकॉज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, इवन आर्कटिक आइस इज मेल्टिंग। सो इन देयर आर गोइंग टू बी आइस फ्री समर्स इन आर्कटिक। आप सोचो, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक जो होता है, आइस फ्री का मतलब ये नहीं कि आइस खत्म ही हो गई, बट अकॉर्डिंग टू साइंस, जो साइंस की भाषा में हम जो बोलते हैं। तो therefore blue economy and green maritime is needed. The R implementation of Hong Kong, this is a good point. Hong Kong Convention, extended producer responsibility is a wonderful point. Green fuels is also a good point. So I think on track, good competitive answer. Both are okay, मतलब on track है। Glacial lake outburst recently seen in Sikkim, देखो इन्होंने भी यही किया, due to anthropogenic causes bringing an attention toward threats of climate change। अरे भाई वो ग्लोब पूछ रहा है, वो सिक्किम के लिए नहीं पूछ रहा है, और सिक्किम घुसाना जरूरी नहीं है, पहले ग्लोब बता दो। फिर ग्लोब को बताते हुए सिक्किम की कुछ, अब सिक्किम से खतरनाक कुछ ग्लोब कहीं फट गया, लद्दाख में हो गया, हिमाचल उत्तराखंड में हो गया, फिर क्या करोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। सो राइजिंग डिपोजिशन ऑफ ब्लैक सूट, रिड्यूस एल्बिडो, इन्होंने भी बोला था, आपने भी बोला। रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, आपने भी, उन्होंने बताया। नेचुरल डिप्रेशन गेट फिल्ड विद वाटर क्रिएटिंग ग्लेशियर लेक्स, बिल्कुल सही बात है। अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड कॉजिंग प्लेट मूव, सारे पॉइंट्स वही हैं। बस ये सिंपल तरीके से, वो भी सिंपल था, लेकिन एक आध पॉइंट को हम वो कर सकते हैं, वी कैन जस्ट टर्न एंड ट्विस्ट, दैट्स ऑल। और को बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। Overfilling of depressions and the leads to threshold level and breaking of natural barriers. This is cut. Given the causes, it becomes self-sustaining process, further accelerating its pace, leading to several impacts. Release of stored carbon, amplifying the greenhouse gases. Okay. Release of harmful new bacteria and microorganisms. ये पॉइंट बाद में आ सकता था। इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर्स उत्तराखंड, अबे भाई उससे पहले आप ये जो आपने पॉइंट नंबर 4 बोला, ये ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो क्योंकि सिक्किम में था इसलिए आपने लिख दिया, जान माल सब खत्म हो जाता है। ये बात है ना, स्ट्रैटेजिक भी है। अगर आप फिर लिखते हैं स्ट्रैटेजिक भी है। अगर सिक्किम की बात करो तो नो बडी हैज रिटन इट इज a स्ट्रैटेजिक जोन। उसका कॉस्ट ही ज्यादा हो गया, सिक्किम में होने का मतलब है चाइना को फायदा हो गया, हम सिक्किम में लगे रहेंगे, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रैटेजिक एंगल से अगर आपको बताना है तो स्ट्रैटेजिक भी बताओ। ब्लॉक एक्सेस टू बॉर्डर रीजन ड्यू टू ह्यूज डब्ल्यूज इनफ्लो। अब ऐसा तो ठीक है, गिवन द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लॉक्स, गवर्नमेंट हैज टेकन सर्टेन स्टेप्स। Satellite monitoring to trace the formation of glacial lakes, gradual release of water to prevent outbursts, EIA for the construction of dams, not distorting the natural flow of water in the river। बहुत सारे चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं। नाउ वी आर मोर, आसान नहीं है इतना, तो आप लिखिए कि ऑलरेडी वी आर वर्किंग, बट स्टिल मोर नीड टू बी डन। ये ऐसा है कि ग्लोव के बाद नहीं किया है, ये पहले से भी हो रहा है। डैम सेफ्टी एक्ट प्रोविजंस एंड पीरियोडिक असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वनरेबल साइट्स थ्रू ड्रोन्स। अच्छा, okay. Thus, sustainable development of hilly terrains is needed to protect the natural ecology and prevent disasters. On track है, अच्छा लिखा आपने भी, अच्छी, ये 15 नंबर का है तो काफी है। Radiometric dating is also called radioactive dating. Important to study fossils and ensure future preparedness against diseases and mutations, and also to understand past. It studies traces of radioactive elements in rocks and carbons containing products on basis of half life of carbon, done by Geological Survey of India. More structured है, पहले जैसा था वो उसमें भी अच्छे पॉइंट्स थे, लेकिन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और सिंपल हो गया। यूरेनियम, रुबिडियम, पोटेशियम कंटेनिंग फॉसिल्स। बेनिफिट्स, knowing time period of fossils going beyond 4.3 billion years ago, more knowledge about origin of life and reasons for extinction। वही आर्कियोलॉजी की बात है, जो पैलेलिथिक एज की जो होमो सेपियंस, होमोनिड्स और वो नियंडरथल्स की बात करते हैं। Learning from past mistakes and promote sustainability. Okay, not for non-radioactive fossils, time taking and not 100% reliable, limited methodology and usage for, तो पॉइंट ऐसे छोटे होंगे जैसे मैंने पहले भी बोला था वहां पे, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। Lack of comparative result due to limited experimentation. However, radiometry is considered better than carbon dating. Carbon dating is used only to know origin up uphill 50,000 years and not before। हाँ मतलब ठीक है, बिफोर प्रेजेंट के लिए होती है कार्बन। So calcium 41 being radioactive isotope of calcium helps in more accuracy, precision, more stable
इन अक्रंस एक्सटेंडेड इन अदर सिमिलर मैटर देयरफॉर इट इज यूज्ड मोर ऑफन। तो थोड़ा एक एग्जांपल हो सकता था पहले वाले आंसर्स के मुकाबले, बाकी ठीक है। Now, digitization of health forms the bedrock of three A's: accessible, available, affordable healthcare in India. With the e-commerce revolution, e-pharmacy sector too has grown in India. ठीक है, चलो पर आंसर का इवोल्यूशन अच्छा हो रहा है। ई फार्मेसी में आपने बोला मेडिसिन है, टेलीकंसल्टेशन है, टेस्ट एंड होम सैंपल कलेक्शन है। वंडरफुल। डिस्पाइट गवर्नमेंट पुश फॉर डिजिटल हेल्थ, देयर एग्जिस्ट सर्टेन कंसर्न्स। ठीक है भाई, क्या कंसर्न है? कलेक्शन एंड स्टोरेज, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस आपने पकड़ा दिया, जरूरत ही नहीं था। नो रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस, और ऊपर से आपने यहाँ पे नहीं बताया जो मैंने बताया था, डार्क पैटर्न जो उन्होंने बोला था, उसके बाद जो अब्यूज है ड्रग का, और ऊपर से आप एक्सपर्ट है भी नहीं है। Although it has proven benefits like insurance penetration with digital availability, generic medicines, ease of doctors to see patients, increase awareness generation, this major need to resolve dichotomy. Dichotomy क्या है, कैसे रिजॉल्व करेंगे? E-commerce policy still pending, regulation of quality standards, audit of laboratories, imposition of price ceiling for fairs, connecting PHCs, ASHA workers, Digital Data Safety Act to cover safety of health data. Thus only then universal and affordable healthcare can be guaranteed. I think wonderfully done. इसका स्ट्रक्चर बहुत फास्ट और बहुत फ्लूइड है। पहले वाला भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने जैसा बोला कि सिंपल फ्लूइड तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, वो थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंस को रेज करेंगे तो हम कम वर्ड लिखेंगे फिर। LWE has been the one of the intern security challenges known as रेड कॉरिडोर। ओके, छत्तीसगढ़ उड़ीसा आपने बना दिया, लेकिन उन्होंने जो कंपेयर किया था दैट वाज मच बेटर। मॉइस्ट है रेडर टू यूजिंग वायलेंट मीन्स, उससे चलिए आगे चलिए आगे चलिए, मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन प्रोलिटेरिएट क्लास, इसका कोई आंसर नहीं पूछ रहा है ये। लेकिन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन ऑन डिक्लाइन, चलिए आप देखते हैं क्या बोला आपने। बैनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई मॉइस्ट, दिस वाज अ गुड पॉइंट अंडर यूआईपा एक्ट, दिस हैज डाइल्यूटेड द, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से what I should say legislative step लिया। Developmental measures like periodic elections in free and fair manner, opening of ITI center employment, ठीक है। इसके लिए कीवर्ड्स और अच्छे हो सकते थे जैसे उस आंसर में थे। ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ठीक है भाई, सड़क बनाने से तो सिर्फ नहीं होगा, लेकिन आपका मतलब मैं समझ सकता हूँ। स्पेशलाइज फोकस लाइक ग्रे हाउंड्स, ठीक है। स्टेशनिंग ऑफ सीएपीएफ पर्सनल्स, ओके। सरेंडरिंग बाय मॉइस हैव लेड देम टू चेंजेस इन द पीपल्स बिलीफ इन, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे पहले वाले आंसर में हैवी और क्रूशियल वर्ड से आ रहे हैं तो कम लिखना पड़ेगा, और ऊपर से आप ज्यादा इंपैक्टफुल वर्ड लिख पाएंगे। ऑलवेज पहले तो लिखना सीखिए, फिर इंपैक्टफुल लिखना सीखिए। इंपैक्टफुल लिखने के बाद आप रिलैक्स और कमांडिंग हो जाएंगे, मैं क्या कह रहा हूं मैं समझ भी रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। टू इंश्योर दैट LWE कम्स टू एन एंड, सस्टेन एफर्ट्स, ये तो बात सही है। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं तो आप सस्टेन एफर्ट्स एज नीडेड एज विजिबल मेन, ये मतलब ये सब जार्गन नहीं चाहिए। जार्गन कम कीजिए, बड़ा वर्ड लाइए, काम का वर्ड लाइए, और एक बात सिंपल बात को कहिए साथ में। Therefore, given the pace of decline of LWE, it can come to an end in near future for the standing union of states। अरे नहीं, मतलब हम तो ऑलरेडी स्ट्रेंथन नहीं है, वो हमें कुछ नहीं वो कर सकते, मतलब ये जरूरी नहीं है आपको बोलना कि उसके बाद ही हम स्ट्रेंथन होंगे। वी आर ऑलरेडी स्ट्रेंथन। फर्दर गिविंग, फर्दर गिविंग, यू नो, लोकल पीपल को वहां को मिलेगा ना। फर्दर गिविंग व्हाट आई शुड से, पीस ऑफ माइंड, फर्दर गिविंग लाइफ, या फर्दर गिविंग डेवलपमेंट, या फर्दर गिविंग देयर, वैसा कुछ होना चाहिए। With increased globalization, interconnected world, distinction between money laundering and tax crimes are blurred। ये बहुत अच्छा किया आपने। टैक्स क्राइम को कैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ते हैं, ये बहुत अच्छा बनाया। शेल कंपनीज, बेस इरोजन, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 डील्स विद सच क्राइम्स। ईडी एंड सीबीआई नोडल एजेंसी है। टैक्स क्राइम्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए कॉम्प्रेहेंसिव लॉ चाहिए। चैलेंजेस क्या है? डिजिटाइजेशन हैज इंक्रीज द ईज ऑफ कमिटिंग सच क्राइम्स। क्रिप्टोज हो गया, अनट्रेसेबल और अनोनिमस होता है। ग्रॉस बॉर्डर, शेल कंपनीज की बात भी आपको करनी चाहिए थी ऊपर ही। क्रॉस बॉर्डर एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, बहुत सही बोला आपने ये। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी मिसयूज कर देते हैं स्विट्जरलैंड, पनामा। वेरिड स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स लीड्स टू बीईपीएस। पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बोला। FATF नॉट हैविंग जुडिशियल पावर्स टू पनिश द कल्प्रिट, टू सेट ए प्रेसिडेंस। स्टेप क्या होना चाहिए? ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एज डिवाइडेड बाय OECD, दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट। नॉट अलाउइंग टैक्स हेवंस टू एंजॉय एडवांटेजेस। Fugitive Economic Offenders Act 2018, FEMA 1919 and PMLA 22, Trinity must be synergized। तो अच्छा लिखा, क्लैरिटी से लिखा। ग्लोबल कॉपरेशन, सिंगल प्लेटफॉर्म इज नीडेड। आई थिंक ऑन ट्रैक है। गुड गुड पॉइंट्स, गुड आइडियाज, वी विल डिस्कस फर्दर। चलिए आगे। तो प्रायोरिटी इन्होंने दी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग आउट टू द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्होंने भी पॉइंट लिखे। चलिए चलिए आगे चलिए आगे चलिए। एस्पिरेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को फिर उन्होंने कैसे बताया? इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद जो है PM प्रणाम, PBTG, एजुकेशन, स्किल सब लेके आइए। वी कैन से दैट सप्त ऋषिज आर टॉकिंग टूवर्ड्स
sustainable future. But there is need to think, can the budget be allocated in different sectors of Saptarishi appropriately, और या फिर हमें कुछ ओवरऑलिंग चाहिए? गुड क्वेश्चन, ये अच्छा रेज करने की कोशिश की आपने। गोल इज क्रिप्स एंड क्लियर है, बेसिक स्कीम हमें उसको आगे वो करना है, मूव टुवर्ड डेवलप्ड कंट्री। आई थिंक ठीक है, गुड आर्ग्यूमेंट, थोड़ा और अच्छे से हो सकता था जैसा हमने पहले आंसर में देखा था, पर गुड पॉइंट। हाउ पीपीपीज कैन हेल्प इन इंप्रूविंग द स्टोरेज, ट्रांसपेरेंसी एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? वास्ट एग्रीकल्चर लैंडस्केप है, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन गोल्ड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आपने बात की, स्टोरेज सिस्टम की आपने बात की, फिर आपने बोला कि मिनिमम एफर्ट्स में कैसे हो सकता है, क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर की बात की, रिड्यूस द गैप, ठीक है। पहले वाले आंसर्स में ज्यादा क्लैरिटी के साथ हमने और ज्यादा हायर बात की थी, यहाँ भी आपने की लेकिन उतने इससे नहीं की। पीपीपी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में आप कैसे बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दिस इज अ गुड पॉइंट। ई व्हीकल्स, बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। उसके बाद जो है आपने डबल फ्रूट्स की बात की, क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करने की बात की, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड फाइनेंसिंग एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। पीपीपी मार्केटिंग और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो यही है। पूरे आंसर को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन और करेंगे, थोड़े कीवर्ड्स को एक साथ लेके आएंगे, रिपीट नहीं करेंगे, पूरा एक पिक्चर बन के आएगा तो नंबर आएंगे। स्कीम की अगर हम बात करें जो मॉडर्नाइजेशन की है एंड रिफॉर्म्स की टेक्नोलॉजी में पीडीएस की, तो इन्होंने इसमें लिखा कि भाई बियॉन्ड जस्ट राशन, सबने यही बात की, बिल्कुल सही बात है। पहली बात, लीकेज रुकेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी इंश्योरिंग टू द माइग्रेंट्स होगा, मैनेजमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ डेटा जनरेटेड टू हैव क्रिटिकल इंफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। यूटिलाइजेशन ऑफ एआई, दिस कैन ब्रिंग इन लॉन्गर रन सेंट्रल सिस्टम, चलिए आगे। प्रमोटेड द आइडिया ऑफ वन नेशन, चलिए आगे, चलिए आगे। पीएम स्वनिधि, आयुष्मान भारत। उसके बाद इन्होंने बात की एथिकल गवर्नेंस, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, एथिकल गवर्नेंस का फाउंडेशन है ये। ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाएगा, जैसे मैंने बोला था, करप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए गुड लाइन। तो आई थिंक ऑन ट्रैक, कोई भूखा नहीं सोए, गुड। बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर जैसे आंसर का बनना चाहिए वैसे और बनाइए, तो इस इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। चलिए मूव फॉरवर्ड प्लीज। एक्सप्लेन द कॉजेज, वही वाली बात है, कॉजेज एंड के बाद तो कुछ लिखा ही नहीं। कॉजेज एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बात थी। तो रिसेंटली ट्रैजिक एक्सीडेंट हैपन, तो इन्होंने भी वही बात की। अरे भाई, सिक्किम से रिलेटेड थोड़ा ना पूछा है, अब इन्होंने तो वो पूरा एग्जैक्टली बता ही दिया है कहाँ पे क्या हुआ। अकरेंस फिर बता रहे हैं, बाउंड्रीज, लेक ब्रेकिंग, कॉजिंग सडन, ठीक बात है। कॉजेज बताइए, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी, देखो इन्होंने भी वही लिखा, इससे पहले भी वही था। उसके बाद आपने बोला कि भाई राइजिंग CO2 लेवल, बिल्कुल ठीक बात है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ओके। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, सही बात है। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर establishing glacier lake monitoring system, satellite and drone, education, evacuation preparedness, बिल्कुल ठीक बात है। Sendai framework 2015, now this is a good point for paradigm shift for managing disaster, managing cascading disaster in multifaceted risk hotspot, this is a wonderful point। Strengthening risk governance in fragile terrain, तो कम उधर उधर का फालतू बात ना लिख के आप ये भी लिख के छोड़ दोगे तो नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने लास्ट में लिखा जनरेटिंग एडिक्वेट अवेयरनेस इन द कम्युनिटी, ठीक बात है। सिक्किम को माफ कर दीजिए, सिक्किम के बियॉन्ड सोचिए, बड़ा सोचिए। हाउ डज रेडियो मेट्रिक डेटिंग, जो हमने पहले बात की थी, रेडियो मेट्रिक डेटिंग माइंडफुल है, ठीक बात है, चलिए। उसके बाद आपने वर्किंग बता दी, प्रिंसिपल बताया इसका, और रेट ऑफ डीके ऑफ प्रोडक्ट्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल, चलिए आगे। सो डिफरेंट आइसोटोप होता है, डिफरेंट हाफ लाइफ होती है, बिल्कुल सही बात है, चलिए आगे। लिमिटेशन भी बता दिया इन्होंने रेडियोमेट्रिक रेटिंग की, सब मटेरियल पे हो सकती है, सेडिमेंट्री रॉक्स पे नहीं हो सकती, दिस इज अ गुड पॉइंट, आधा नंबर मिलेगा। रेडियोमेट्रिक डेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड इफ पेरेंट और डॉटर आर नॉट मेजरेबल, ओके। एक्यूरेट डेटा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसके बाद उसकी मेथोडोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एडवांटेज बताया कैल्शियम 41 का, लॉन्गर शेल्फ लाइफ है, अबंडेंस ऑफ कैल्शियम 41 इन अर्थ, दिस इज अ गुड पॉइंट। उसके बाद जो है हाई सेंसिटिविटी है और उससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है, इट कैन एक्सपेंड द डेटिंग ऑफ अदर, तो आई थिंक गुड पॉइंट्स, वंडरफुली यू आर आल्सो ट्राइंग टू एंगेज विद द आंसर, दिस इज अप्रिशिएटेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ई फार्मेसी और हेल्थ वाला, चलिए। देयर इज नो डाउट ई फार्मेसी आ गया, चलिए। इन्होंने क्या बोला, अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी टू मेडिसिन, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बहुत अच्छी पॉइंट है ये, मतलब सिंपल पॉइंट है। एक्स कितना ही ले लो, कुछ भी ले लो भाई, मंगाना है बस। सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन, आई लाइक द लाइन्स, सेडेटिव, एंड ये बहुत अच्छा लाइन है। कंजम्पशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, हो सकता है सेल्फ मेडिकेशन, जैसे केरला में इन्होंने भी औशिक को फॉलो किया, और केरला फिर एंड प्रेग्नेंट लेडी वहीं कोने में बस चले, तो वहीं जो है पूरा एकदम केरला का
बायोस्फीयर रिजर्व भी बन जाएगा। समझ नहीं आता लोग ऐसे क्यों करते हैं। एक्सेसिबिलिटी टू चिल्ड्रन, हाँ ये बात सही है, कोई भी ऑर्डर कर सकता है। नो क्लैरिटी ऑन ड्रग स्टोरेज, इम्प्लीकेशन रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। ओके, धो दिया आप लोगों ने तो पकड़ पकड़ के। डिजिटल हेल्थ, जबकि आपकी पूरा प्रमोशन आपने बताया क्या है। ई फार्मेसी कंसर्न्स ग्रो कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी बताइए। यूटिलिटेरियन अप्रोच, मिडल पाथ, चलिए आगे चलिए आगे। रेगुलेटरी मेजर विदाउट हैविंग प्रॉपर, चलिए चलिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म, कंज्यूमर एंड सेलर का डेटा होना चाहिए। लाइसेंसिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन फार्मासिस्ट एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। यूटिलाइजेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दिस इज अ गुड पॉइंट। अमेंडमेंट इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, दिस इज ऑल्सो वंडरफुल लाइन। तो इससे आपको कुल मिला के एवरेज से ऊपर नंबर आने के पूरे चांसेस। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जब बात करते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, बहुत अच्छा पॉइंट बोला शुरू में ही। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, देखो इन्होंने वहां ले गए इसको उठा के। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आई। डिफरेंट लेवल्स पे सेंटर स्टेट ब्लॉक उन्होंने हेल्प की रिड्यूस करने में। आई थिंक दिस इज वेरी गुड, आई लाइक दैट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रोल दिया। कमिंग अप स्कीम्स, डिपार्टमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग, सोशल असिस्टेंस, आई लाइक इट। अगर आपने खुद लिखा है तो दिस इज वंडरफुली डन। फिर उसके बाद आपने सिविक एक्शन प्रोग्राम, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बात किया। एक्सपेंशन, रोड नेटवर्क, इंप्रूविंग टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, फाइनेंशियल हो गया। स्टेट लेवल को भी बता दिया, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, चलिए आगे। उसके बाद आपने बताया मल्टी एजेंसी सेंटर, तो की वर्ड्स आर देयर, वेरी वेरी गुड की वर्ड्स आर देयर। रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, स्मार्ट पुलिसिंग, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बात की। ब्लॉक लेवल पे भी आपने तो पूरा ही एकदम मतलब गजब है आप लोग, मतलब सेटिंग अप पंचायत म्यूनसिपैलिटीज। बस यहाँ पर जो है आपने आप लोगों ने लेफ्ट विंग वाले का फोटो नहीं बनाया, बाकी सब कुछ कर दिया है। ग्रीवेंस रेड्रेसल, वाटर फैसिलिटी, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उसके बाद जो है वाटर, हेल्थ फैसिलिटी, आशा वर्कर, सभी कुछ तो आ गया। गिविंग परमिशन टू कंपनीज, ट्राइबल वुमेन फ्रॉम कोरापुट एट G20। ओके, yes, I agree. If happiness induced development is promoted, okay. Left wing extremist leaders are poverty, underdevelopment to create hegemony, not inferiority complex. Good, I think good efforts. I can understand your intention. I think well written, very good efforts. Despite commonalities and synergies, अब ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो हमारा क्वेश्चन था, सिनर्जी है मनी लॉन्ड्रिंग में, जैसे इन्होंने बताया। चलिए, इंटीग्रेटिंग एंटी फाइनेंशियल क्राइम स्ट्रैटेजीज। तो अब जैसा वहां पर पहले आंसर में मानसी ने बताया था कि कैसे हो रहा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे रोका जा सकता है उसकी बात शुरू में कर दी। इंटीग्रेटिंग एंटी फाइनेंशियल क्राइम स्ट्रैटेजीज, एंटी फाइनेंशियल क्राइम, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, एंटी लॉन्ड्रिंग। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। इन्होंने इसके सिग्मा को या उसके उसको आपने बता दिया। देन बट वी आर ऑब्जर्विंग एवर ग्रोइंग पेमेंट मार्केट, चलिए आगे चलिए। उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई, चलिए आगे चलिए। ओवरऑलिंग लाइज चैलेंज, हाउ टू चेक द स्टार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एट इनिशियल प्लेसमेंट, कॉमनवेल्थ स्कैम्स 2010, सॉल्यूशन, रोबस्ट सिस्टम, कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर इंटरैक्शन, चैलेंज टू। तो थोड़ा इसको स्मार्टली लिखना है। कोलगेट स्कैम जैसे आपने पूरा एकदम डिटेल करके बताया, इसको स्मार्टली पुटअप करना है। हायर मैनेजमेंट एबिलिटी वो सब होती है। चलिए आगे। इलिसिट एक्टिविटी, चलिए गैम्बलिंग, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे महादेव ऐप की बात कर अगर हम करें, FIU का भी रोल इन्होंने बताया, तो आई थिंक गुड। लेकिन थोड़ा स्मार्ट, बड़े बड़े कीवर्ड्स, आंसर एकदम पूरा वैसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। ये हमने बात की तकनीक, भारत में भूमि रिकॉर्ड, इन्होंने सीधा अच्छा वो वाला ब्लॉकचेन वाला ही आंसर किया। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, बिल्कुल भैया राष्ट्रीय, ठीक बात है। ब्लॉकचेन P2P नेटवर्क है, ठीक बात है। भूमि संसाधन विभाग द्वारा असम राज्य में भूमि रिकॉर्ड, ठीक बात है। ब्लॉकचेन डेटा, अधिक जांच, विश्वास, पारदर्शिता, ठीक बात है। ई ग्राम, ई स्टाम्प, ठीक बात है। भूमि वितरण, ठीक बात है। पंजीकरण, चलिए। क्रिप्टोग्राफी और वितरित नेटवर्क, चलिए आगे चलिए। भूमि पार्सल, भू नक्शा, पहाड़ी क्षेत्रों में भी आपने बात कर दी, अच्छा लिखा है। नेशनल पार्क, आर्द्र भूमि, वन्य जीव, आई थिंक वंडरफुली रिटर्न, इंटेंशन इज वेरी क्लियर। PPP वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत सरकार बुनियादी ढांचा, आपने बताया अनुकूल बनाने के लिए PPP कैसे किया इन्होंने। बुनियादी ढांचा, संकलन दक्षता, टेक्नोलॉजी, प्रभावी प्रबंधन, जरूरत के अनुसार सुयोजित अर्थव्यवस्था में वृद्धि। कृषि के समावेशी विकास के लिए PPP मॉडल, चलिए आगे चलिए। महाराष्ट्र, इन्होंने भी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया। गांव का विकास, उत्पादन की बात की। उसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात का एग्जाम्पल दिया। गति शक्ति, स्वर्ण चतुर्भूमि, चतुर्भुज मार्ग के माध्यम से देश के आखिरी छोर तक जोड़ा जा सके। बंदरगांव के निर्माण में PPP की भागीदारी की बात की, ठीक बात है।
कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, बिजली सप्लाई, तो मोटे मोटे सारे पॉइंट्स इन्होंने भी दिए हैं कृषि में तकनीकी अनुसंधान के लिए। आई थिंक वेरी गुड रिटर्न, कृषि बायोटेक्नोलॉजी, आई थिंक वेल रिटर्न। इसमें भी काफी हम कह सकते हैं कि देयर आर एलिमेंट्स। उसके बाद हमने बात की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। संघ के आपने खाद्यान्न अभिग्रहण भंडारण और उसके बाद आपने थोक आवंटन की बात की, उचित मूल्य नेटवर्क की बात की, मुद्दों की आपने बात कर दी, पर्यावरण है, परिवहन है, भंडारण है, ऑडिट है। उसके बाद आपने 80 करोड़ लोगों की बात की, स्मार्ट पीडीएस की बात की, चलिए आगे चलिए, लाभार्थियों को स्मार्ट आगे आपने बात की, चलिए राशन कार्ड जारी करने की बात की। उसके बाद आपने बताया पारदर्शी जवाबदेही बनाना पड़ेगा, मानव हस्तक्षेप कम होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की आपने कमान नियंत्रण प्रणाली का एग्जाम्पल दी, दिस इज गुड वन। उसके बाद आपने बात की परिवहन को ट्रैक और मॉनिटर किया जाए, ठीक बात है, ऑडिट आने वाली समस्याओं, ठीक बात है, चलिए आगे चलिए आगे चलिए, कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज। उसके बाद समुद्री ताप तरंगों की बात करते हैं हम, चलिए। आपने बताया ठीक है, अभी आई हैव रेड दिस, दिस इज फाइन। प्रभाव बताया आपने सीधा, पहले आपने बताया है क्या वो, समुद्री हीटवेव आपने बता दी। उसके बाद आपने प्रणाल विसर्जन, समुद्री घास का नष्ट होना, मत्स्य पालन, एल नीनो, मानसून, कारण भी बता दिया आपने, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है, तो एक डायग्राम बनाना चाहिए था। चलिए आगे, आर्थिक नुकसान आपने बता दिए, मानसून जैसा कि पहले दोनों आंसर्स में हमने देखा था। उसके बाद आपने अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति और बाकी चीज की आपने बात की, चलिए कैन यू मूव फॉरवर्ड प्लीज। उसके बाद एनडीएमए, ग्लेशियर आर्टबर्स्ट द्वारा एनडीएमए का आपने नाम लिया, संभावित रूप से खतरनाक झीलों की पहचान करने की बात की आपने शुरू में ही। ग्लेशियर पिघलते हैं, आपने बहुत अच्छा समझा है, जब जल, रेत, कंकड़, बर्फ अवशेष से बने प्राकृतिक बांध जैसी संरचना मोरेन एकत्र हो जाते हैं, मोरेन की कमजोर संरचना के कारण टूट जाते हैं, तो पानी आएगा ही आएगा। जलवायु परिवर्तन मेन कारण, साथ साथ में मानव का जो अब खुद का औद्योगिकरण या वो जो उसका जीवन है वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ग्लेशियर का द्रव्यमान संतुलन पड़ने वाले प्रभाव, समुद्र तल का बढ़ना, चलिए संभावित खतरे झीलों का पहचान करना, मानसून और अधिक वर्षा। उसके बाद आपने अधिक मात्रा में एकीकृत जल को वजह से सैटेलाइट से, और आपने कहा जियो टैगिंग के माध्यम से पता लगाना। अर्ली वार्निंग सिस्टम, वेरी गुड पॉइंट। स्थायी निवासियों को प्रशिक्षित करना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आई थिंक गुड पॉइंट। इन्होंने सिक्किम ने लिखा, ये मैं हैरान हूं कि इन्होंने सिक्किम कैसे नहीं लिखा। चलिए आगे, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, वैज्ञानिकों के जीवाश्म आयु, उसके बाद आपने आयु निर्धारित करने कार्बन 14 का विकल्प बताया, और आपने कैल्शियम से पृथ्वी और उत्पन्न होता है, आपने सिंपल सी बात बताई। चलिए आगे, कोविड 19, दिस इज अ गुड पॉइंट। आपने जहां से शुरू किया, कोविड 19 डोर स्टेप डिलीवरी, दिस आई लाइक इट। आपने वहां से शुरू किया कि वहां से ये बढ़ा, कैसे हुआ, 8.8 मिलियन परिवार हो, आपको ये भी पता है, बहुत अच्छा, इंटरनेट, स्मार्टफोन, चलिए। गुणवत्ता, ऑनलाइन बिकने वाली दवाओं पर लाइसेंस संबंधित समस्याएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम, कोई वैधानिक सब समर्थन नहीं है। ई फार्मेसी 2018 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई, आई लाइक इट द वे यू पुट इट। नई आयुष्मान डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान केंद्रों को ई कॉमर्स के साथ जोड़ा जाए, बिल्कुल ठीक बात है। एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस हो, डिजिटल साक्षरता की बात की, डेटा गोपनीयता की बात की, ब्लॉकचेन की बात की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की, आई थिंक वेरी गुड पॉइंट्स, अप्रिशिएटेड। चलिए आगे, उसके बाद आपने बात की भारत में वामपंथी उग्रवाद को, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आपने बताई, 10,000 से ज्यादा युवाओं को आंदोलन से अलग किया, बहुत बढ़िया, 2025 तक ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आपने नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग जैसी रणनीतियों का प्रयोग किया, बक्सर दंतेवाड़ा क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य प्रारंभ किए, तो कितना लूसिड है ये देखिए, आप सबको लूसिड लिखना चाहिए। फिर आपने सिविक एक्शन प्रोग्राम की बात की, चलिए आगे चलिए। फिर आप स्थानीय लोगों को आपने जोड़ा, उसके बाद जो है बीज और पशुधन उपलब्ध कराया, सबकी अपनी अप्रोच है। एकीकृत विकास परियोजना की बात की, व्यापार के लिए जनजातीय उत्पादों को हस्तकारों के लिए शिल्प मेलों का आयोजन किया, आई थिंक वंडरफुल पॉइंट। आदि महोत्सव और ये सारी चीजों ने बहुत फर्क डाला है, इमेज, कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी, दैट मेक्स अ डिफरेंस। चलिए मूव फॉरवर्ड प्लीज। हो गया सर, खत्म। कैन यू हियर मी? सो हो गया, फाइल कंप्लीट। कैन यू हियर मी प्लीज? इफ इट इज